नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी को-होस्ट आमना अंसारी। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. This week, yet again, we're joined by Abhijit Iyer Mitra, AIM, right? He's there, and of course, he needs no introduction, not to be confused with OAC's party. That is AIMM something. Right. So we've got Abhijit to speak about the Russia-Ukraine crisis. A lot of technical jargon, words of foreign diplomacy, ye, wo, falana, dhimka. So Abhijit, please explain it to us in layman's term. We are not Dhruv Rathi. We don't understand everything on earth. We want to start actually a little different, Abhijit. जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूनियन सोवियत और सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो भी इतनी बड़ी एक शक्ति थी 91 तक, उसमें फिर ये टुकड़े होके रशिया, यूक्रेन और बहुत सारे कंट्रीज हुए। तो ऐसा था 90s में भी, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस डोमेन के, कि यूक्रेन ऑब्वियसली पहले उसी चीज का हिस्सा था। सो is there some affiliation Ukrainians feel towards Russia and similarly from Russia? Because इस चीज की बात नहीं होती। तो अगर आप शुरू से स्टार्ट करते कि ऐसा कुछ है, the ethnic values and just being together for centuries, ऐसा कुछ है, तो आप अगर वहां से शुरू करते। 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप होता है, the countries that truly precipitated it were Estonia, Latvia, Lithuania. They had always had a kind of national identity of their own. Ukraine में they were keen but not all that keen. अब जो हो गया सो हो गया करके they all voted, 91% voted for separation because they didn't even realize what they were getting into. ठीक है? फिर क्या हुआ कि in fact the situation in some places was so bad that Kazakhstan left the Soviet Union only after Russia left the Soviet Union. Russia dissolved the Soviet Union on the 11th of December 1991, and on the 16th of December 1991, Kazakhstan says, "Abey BCMC ये क्या हो गया? Okay, we left the Soviet Union." बड़े भाई चले गए तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना? तो यानी पार्टी का होस्ट ही चला गया तो मैं उसके घर में क्या पार्टी करूंगा, ठीक है ना? तो क्या हुआ कि यूक्रेन में दिस लेड टू अल्टीमेटली टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट में जो रशियन ईस्ट ऑफ द ड्नीपर था और यूक्रेनियन वेस्ट ऑफ द ड्नीपर था, इसमें काफी डिफरेंसेस थे। ईस्ट ऑफ द ड्नीपर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था। वेस्ट ऑफ द ड्नीपर कर रहे हैं आप? हाँ, ईस्ट यूक्रेन की बात। ईस्ट ऑफ द ड्नीपर, सो रिमेंबर द ड्नीपर रिवर ऐसे जाता है, एक किस्म से एरो की तरह जाता है, ऑलमोस्ट इन द एग्जैक्ट मिडल ऑफ यूक्रेन। कीव ड्नीपर के दोनों साइड में है, ईस्ट बैंक एंड वेस्ट बैंक, ठीक है ना? अब ईस्ट ऑफ द ड्नीपर जो रशियन मेजॉरिटी था, उसमें पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जहां यूक्रेनियन मेजॉरिटी था, उधर पूरा का पूरा एग्रेरियन इकोनॉमी था, राइट? अब इसमें क्या हुआ कि आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, जो अर्बन रूरल के बीच में जो तनाव रहता है वो बहुत ही ज्यादा था इसमें, बिकॉज इट वाज अर्बन रूरल का तनाव, इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल का तनाव, रूसी नॉन रूसी का तनाव, haves and have-nots, exactly. But also remember, the mindset is very different. When you're a rural agrarian person, you tend to be much more primitive in your mindset, much more parochial. Religion matters more for you. Your customs and your bonding with your family matters more for you. Whereas, at that point, I want to ask you a question. In that way, what would you say? East wale have some affiliation towards Russia, like a dominant sense of belonging, or the West have it? Initially, they did not have. Initially, they did not have it. The East did not have it, but because of what happened after that, because remember, the native Ukrainians were a majority. They controlled the vote in a sense, and so you slowly had these policies that went on alienating Russians. तो जो पहले urban cosmopolitan Russians थे, they turned very pro-Russia slowly. So as elections keep progressing, you see there's a clear divide between how the East votes and how the West votes. The East always used to vote for a pro-Russia candidate.
the West always started then voting for a pro-Ukrainian national candidate. So there is a pro-Russian sentiment in Ukraine. Ban gaya. Ban gaya. Which Putin was observing. Well, yeah, kind of, yeah, he was. फिर क्या हुआ कि ये जो ज़ेलेंस्की 2019 में इलेक्ट हुआ था, he was the first stand-up comedian. He is the first person to say, देखो भाई, ये हमारे बीच में तनाव बहुत है, मैं रशियन माइनॉरिटी को अपना दर्जा दूंगा, घबराओ मत. तो बोथ वेस्ट यूक्रेन ने भी उसके लिए वोट किया, ईस्ट यूक्रेन ने भी उसके लिए वोट किया. पर आके उसने क्या किया? He did the exact opposite. Because if you notice, there are vicious, noxious, nasty, neo-Nazi Ukrainian nationalists whose flag is essentially the SS symbol manipulated around, who were absorbed into the army, given, access to government. Several of them, C-14, something called the Azov Battalion that was absorbed into the military proper, into the National Guard, so on and so forth. So this was quite upsetting. Then जो federalization or decentralization Zelensky ने promise किया था, उसका exact reverse हुआ. And then he started jailing newspaper editors, anybody who criticized him, etc. एक किस्म से देखोगे कि opponent को भी तो उन्होंने जेल किया हुआ है. सबको. Number 2. Anyone and everyone. TV editors also, right? Yeah. अभिजीत, इसी पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि आप जितने भी अभी न्यूज़पेपर देख रहे हो, वहां पे कुछ इस तरह के हेडलाइन चल रहे हैं कि रशिया अटैक्ड डेमोक्रेटिक नेशन यूक्रेन. तो यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा कि जब हम ये सब डिटेल सुनते हैं कि किस तरह से यूक्रेन के अंदर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की इतनी कोशिश हो रही है, इतना कुछ किया है, जेल किया है, और ऑन द पेपर तो रशिया भी डेमोक्रेटिक है, इलेक्शन होते हैं वहां पे, तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी को इविल बनाया जा सके और किसी के लिए सेंटिमेंट जगाया जा सके. बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें जो यूएन चार्टर है वो ये नहीं बोलता है कि अगर आप डेमोक्रेसी हो आपको कोई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का हक नहीं है या नहीं है. हर देश को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का हक है. उसमें लिखा नहीं गया है तुमको डेमोक्रेसी होना है उस हक पाने के लिए, या अगर तुम इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी हुए और डेमोक्रेसी ना ही हुए तब ये हक आप खो जाते है ना. पर ये अब उठा है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है. देखिए, आई डोंट केयर इफ यूक्रेन इज अ डेमोक्रेसी और नॉट. इट इज एन एक्सट्रीमली इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी. इट वाज स्लाइडिंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप. पर फिर भी जो रूस ने किया गलत किया. ऐसे तो देशों को अटैक नहीं किया जाता. पर देखिए, पहले भी अमेरिका ने सर्बिया को यही किया था, लिबिया को यही किया था, इराक को यही किया था. तो I mean, ये क्या है कि हम करें तो चमत्कार, आप करें तो बलात्कार, है ना. तो ये तो हो नहीं सकता है. बट दिस इज एसेंशियली व्हाट इज क्वेश्चन पूछना था कि आर्गुमेंट्स ये दिए जा रहे हैं जो ज्यादातर मेन स्ट्रीम में नहीं है कि रिक्वेस्ट ये थी पुतिन की तरफ से कि आप यूक्रेन को नेटो का हिस्सा मत बनाइए, लेकिन उस चीज को कभी ऑनर नहीं किया गया. वो भी एक एंजाइटी है जिसने इस चीज को उनको फिर आगे प्रोत्साहन किया. आई एम नॉट जस्टिफाइंग, नो वन इज जस्टिफाइंग द इन्वेजन हियर, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल रीजंस. Is there a lot of merit in that argument कि वो कह रहे थे उन्हें कई सालों से कि यूएस को कि आप नेटो का हिस्सा मत बनाइए इनको, that is a threat to us. So if you get into the mind of Putin, so how would you see that? Yeah, it was see in 2001 Putin accepted all these countries' rights to join NATO. Okay. He's on record कि उसने बोला था कि भाई तुम लोगों को नेटो ज्वाइन करना है तो नेटो ज्वाइन कर लो, मे बी कुछ साल में हम भी नेटो ज्वाइन करेंगे. Okay. ठीक है ना. पर उसके बाद, उससे पहले ही ये कोसोवो में और सर्बिया में, बॉस्निया में जो होना था हो गया था. उसके बाद फिर ये इराक पे हमला हुआ, और उसके बाद ऑफ कोर्स सीरिया और लिबिया में जो हुआ सो, ठीक है ना.
Liberal Obama ke under. Correct, and that completely turned Putin the other way. इसके addition में क्या था कि जो anti-ballistic missile treaty इन दोनों ने agree करके रखे थे, उसका अमेरिका ने एक तो पहले उल्लंघन किया. जब उल्लंघन किया तो रूस ने बोला भाई करना है तो कर लो, पर ऐसे करते हैं कि हम दोनों मिला के एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाते हैं ताकि तुम हमारे खिलाफ यूज ना कर पाओ, हम तुम्हारे खिलाफ यूज ना कर पाए, पर तुम आराम से इसको ईरान या नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूज कर. और अमेरिका ने बोला नहीं. और फिर ये जो सब कलर्ड रेवोल्यूशन होने थे जॉर्जिया में, फिर कजाकिस्तान में अभी 2 महीने पहले ही ट्राई किया इन लोगों ने, तो ये सब जब होने लगा, he started getting angrier and angrier and angrier and angrier till he finally said enough is enough. From now on, you are not joining NATO. They were poking the Russian bear and they were not taking his legitimate anxiety into concern. Exactly. ठीक है. तो and Ukraine is a lot like Pakistan. जैसे पाकिस्तान में फौजी फाउंडेशन जो सब कुछ कारोबार चलाता है, उधर इधर oligarchs हैं. जैसे you know those 2000 odd families that control everything in Pakistan through the including the military, industry, land, everything. It's the same in Ukraine in a sense, except they don't do terrorism, I guess. But क्या था कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है वो हिंदुस्तान को ब्लेम कर देते हैं, या अगर पाकिस्तान में कुछ आंतरिक तनाव होता है वो हिंदुस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन हो जिससे वो बोल सके देखो ये हिंदुस्तान आ रहा है, इस्लाम खतरे में है, मिलके ये करो करके. यूक्रेन वाज प्लेइंग दैट सेम गेम विद रशिया, क्योंकि उसका इकोनॉमी फेल हुए जा रहा था, उसके पॉलिटिक्स फेल हुए जा रहे थे, जो भी उधर फेल हो रहा था दे वुड ब्लेम इट ऑन रशिया. ठीक है. सो ये सब accumulate होते गया. And that is what has led to the situation where finally it seems Putin snapped. Right. Also, is it his desire of him like growing up and then seeing USSR breaking and then saying, I want to reclaim that glory? How much of that do you think there is, Abhijit? Along with that anxiety of, you know, Ukraine and other powers playing dirty. Is that also something which he sees like a regaining back of the territory which they lost? Yeah, it's part of it. It's part of it. It's, see, in the beginning, Putin in 2001 is very different from Putin in 2021. Right? 2021 में he was like, देखो एक जमाने में बहुत बड़ा था पर हमने accept कर लिया है. यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज लाइक, हाँ एक जमाने में पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा हमारा था, अब नहीं है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. डज ही थिंक ऑफ एक जमाने में जो भारत था? ऑफ कोर्स. इज इट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक नाउ? नो. पर पुतिन वैसे ही मोल्ड में था. पर 2021 में ही इज लाइक, देखो अगर मैंने ये फिर से एस्टैब्लिश नहीं किया, ये लोग बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान से मेरे को मार डालेंगे. इससे पहले ये करूं, मैं इन तीनों को मार डालूंगा and I will use my old historical claim to justify it. Like I said, that's everything requires well, a historical. Yes. You know, you very well explained what's going on in his head, because there is this absolute attempt by especially the West to say कि you know demon है and all. जब उन्होंने इराक में इससे भी बहुत बुरा किया है, right? मतलब I was today watching, I was shocked, Abhijit. Condoleezza Rice किसके नेतृत्व के अंडर उन्होंने इराक में वो you know invasion की थी, वो कह रही थी कि आज ये international war crimes चल रहे हैं. I mean, unbelievable. But see, this is what worries me about the West. Their ability to look at themselves in the mirror is non-existent. I mean, this is like calling Hitler to talk about human rights, yeah. You know, like come to Abhijit, a little tangentially different. We saw this. There is this thread on Twitter of Western journalists absolutely exhibiting the worst kind of racism, saying कि हमें बुरा लग रहा है कि blue-eyed, white-colored लोग मर रहे हैं और ये हम civilized एक nation है. मतलब तब ये नहीं बात करते when they do this to Africa, when they do this to Middle East. Iraq is like the worst thing they could have done to anyone.
Exactly. There is, Even one. I'm not generalizing all Westerners, but there is this notion Yeah. of superiority which runs amongst the Look, Western. I mean, we have to accept it. And if you accuse them of that, they say, see, there's no proof of it. We don't say these things. We don't use the N word. We don't use the brown coolie word. How dare you say these things about you? You're defaming us. But the problem is, it's at times, unguarded times like this. I still remember there's a former, I'm not going to name names, but there's a former foreign minister on Twitter who's very vocal about Ukraine and Russia right now. I remember about in 2013, we were sitting and drinking a single malt together. He told me the only thing Russia, Ukraine, and Belarus were good for was vodka and prostitutes. Okay. So, look, that racism is displayed in different ways. They say they have atoned for that humanitarian intervention was to atone for the crime of Rwanda. जब रुवांडा में 1 मिलियन लोग मरे थे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया और उसके प्रायश्चित के लिए वो ये humanitarian intervention कर रहे हैं. Bullshit. Because you know what? That Rwanda thing was part of the Second Congo War, effectively. जो Congo में 1998 से 2003 तक war चला. It was think of it as the World War of Africa. Intra-African World War. हर country उसमें involved हुआ था. Congo में ही लड़ा गया. Millions of people died. It never ended. It became the Ituri War, and then it also became the Kivu War. The Kivu War is continuing to this day. आपने कभी कोई humanitarian intervention देखा है? There's still 1.5 million people displaced because of it. आपने कोई intervention देखा है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो काले काले लोग हैं. जब तक हमारे डायमंड्स और गोल्ड और यूरेनियम उधर से आता रहे, तुम काले काले लोग अपने आप को मारते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे. ठीक है? अफगानिस्तान में भी आप भूरे भूरे लोग हैं, आप एक दूसरे को मारते रहो, हम कुछ नहीं करेंगे जब तक आपने आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला नहीं किया. ठीक है ना? तो भूरे लोगों को भूरे लोगों के पास ही रहना चाहिए, भूरे लोगों के साथ ही खाना चाहिए, भूरे लोगों को ही मारना चाहिए. हिम्मत मत करो आके एक गोरे आदमी को पे हाथ छेड़ो. ठीक है ना? Now, mind you, this they've also treated Italians and Irish people badly in the past. But every new wave of immigration used to lead to a whitening of these people. So Irish Catholics were treated like dirt in America at one point of time, till the Italians started coming. And because the Italians were darker and just as Catholic as the Irish suddenly became white, and being Catholic became acceptable, but being Italian was not. Then when the Jews started coming, they were like, अच्छा ये तो यहूदी लोग हैं, पर Italian कम से कम उतने गोरे नहीं है, पर गोरे हैं, और कम से कम क्रिश्चियन तो हैं. फिर उनको व्हाइट बनाया गया और जूस ये थे. फिर जब मल्टीरेशियल इमिग्रेशन होना शुरू हुआ 1960s और 70s में, फिर जूस भी गोरे बन गए. और याद रखो, it was this need to sort of become white, honorary white, that led to the Sulzbergers, who own the New York Times. You know, the Sulzbergers knew about the Holocaust before anybody else. They refused to publish anything about it because they wanted to fit in with society. ये ऐसे लोग थे जो लोगों को मरने से, they had no issues about it as long as their profit margin was safe. Also, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की भी औकात देख. नहीं, अजीब चीज है, राइट? आप कंडेम कीजिए कि जो यूएस और यूके ने इराक में किया, डिस्ट्रॉय कर दी सिविलाइजेशन, राइट? और वही लोग आज मैं देख रहा था, इंग्लैंड की फुटबॉल टीम कह रही है हम रशिया के साथ नहीं खेलेंगे. तो फिर इराक को तो कहना चाहिए कि आप इंग्लैंड की फुटबॉल टीम, तब से they should have been boycotted by the world for decades. Correct, but look, it's the International Judo Federation, it's the International Football Federation, Switzerland, Sweden. Where were all these countries when Iraq was being bombed, or Libya was being bombed, or Serbia was being bombed?
Right? So remember, this is self-interest plus racism masquerading around as altruism. Altruism is one of the most dangerous things, especially evangelical altruism, where you go off on a crusade. I'm not saying it's a Christian thing, but evangelical altruism is usually a mask for the worst kind of corruption. एक चीज और है ना अभिजीत, इंडिया की पोजीशन कितनी प्रैक्टिकल और रियलिस्ट रही है। एक लॉन्ग टर्म एलाय रहा है रशिया, हमारी एनर्जी नीड्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज में हमें उनकी जरूरत है, उन्होंने हमें बैक किया है। उसमें भी एक सेक्शन ऑफ पब्लिक यहाँ पागल हो गई कि क्या, किसको वॉर जिसने किया उसके खिलाफ जाओ, इंसानियत ज्यादा बड़ी चीज है। ये भी तो एक कॉलोनाइज्ड मेंटालिटी है ना, मतलब इंडिया ने तो ना, इंडिया आप सेल्फ प्रेजर्वेशन कोई गुनाह तो नहीं है। एट द सेम टाइम उन्होंने थोड़ी कहा कि इंडिया ने कि भाई अच्छा किया तुमने इन्वेड करके, उन्होंने कहा चलिए आप बात की। On the contrary, Ukraine is holding some of our students as hostage, and they are Nazi and beating them up, coming and beating them up and saying beating them up. तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ने हमारा साथ नहीं दिया, So their permanent representative at the UN directly threatened to do that. Yes. They've supplied tanks in the past to Pakistan. Mm-hmm. They condemned India's nuclear test. Now, अगर एक बंदा जो मेरे पे थूका है, जो मेरे दुश्मन को बंदूक देता है और जो मेरे बाल बच्चों को का अपहरण करके हॉस्टेज बनाता है, अगर वो रोड एक्सीडेंट में मरा है तो मैं क्या, अरे मैं मदर टेरेसा हूँ, मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूँ, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारे को हॉस्पिटल ले जाऊंगा? नो, मैं वही बोलूंगा, मरा साला बहुत अच्छा हुआ। Okay. I want to get you on this. Someone who's very critical of the ruling government. You applauded the way India handled this, right? Yeah. Look, we handled this perfectly. देखिए, पहली बार हमारे शो पे अभिजीत अय्यर मित्रा मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जी, भाई मैं हमेशा तारीफ करता हूं जब तारीफ के वर्दी हो। अगर आप इलैबोरेट कर सके, बिकॉज मोदी फैंस ये सुनना चाहते हैं मित्रा से कि उन्होंने बहुत रेयर टाइम्स में वो क्रेडिट देते हैं, तो what stood out for you the way India is handling this? See, what stood out for me here was the clarity. Okay, the clarity in, remember जब ये 2014 में रशिया ने क्राइमिया ले लिया था, तब क्या हुआ था कि हमने शिवशंकर मेनन जो उस टाइम के एनएसए ने बोला था, देखो रशिया के लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स हैं, which was kind of an approval of the Russian invasion. हमने कभी ये नहीं बोला कि इस बार की लेजिटिमेट इंटरेस्ट है। हमने क्या बोला, देखो भाई ये हमारा झगड़ा नहीं है, तुम दोनों को झगड़ना है तो झगड़ो, हम तो शांति ही चाहते हैं, पर हमको बस हमारे लोग से लेना देना है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनसे लेना देना है, बाकी तुमको शांति करना है, बहुत अच्छी बात है, शांति नहीं करना है भाड़ में जाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है? And mind you, we did it in a way that actually broke from previous non-alignment. Because in the previous non-alignment, it always involved, Congress non-alignment always involved spitting on America and some way or the other supporting the USSR or Russia. So if you remember, V.K. Krishna Menon हमेशा जब UN में जाता था, कुछ ना कुछ बकवास करते रहता था अमेरिकन्स के बारे में। राइट? जब 1956 में उसको बोला गया, नेहरू ने उसको बोला कि तुम ये रशियन इन्वेजन ऑफ हंगरी के खिलाफ वोट डालो, he did not listen. He voted in favor of the USSR, and he was never disciplined by Nehru, who then made him a defense minister after a while. Okay, again, the Congress, when the Congress government was there in 2014, was when Crimea got invaded, and Shiv Shankar Menon says, you know, Russia has legitimate interests, so supporting Russia in that way. This government did true non-alignment the way it was meant to be done, which is to not be seen as a hypocrite and say, bhai,
पहले तो हम चींटी हैं, आप दोनों हाथी हैं, हाथियों के लड़ाई में चींटी का क्या लेना देना, यानी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काइंड ऑफ उसका ऑपोजिट। जब मियाँ बीबी ब्रेकअप करते हैं तो काजी क्या करेगा, ये we didn't condemn anyone, we didn't say anything about anyone. अभिजीत इस पे एक Now आप had we done that, अगर हमने नेहरू के टाइम पे ऐसे किया होता तो इतना अमेरिकन हम पे इतना गुस्सा नहीं होते। तो जो अब आप देख रहे हैं वो इंटेलिजेंट नॉन अलाइनमेंट है। जो नेहरू के टाइम में होता था वो कोई बंदरबाजी था जिसका नाम नॉन अलाइनमेंट था। फिर आप दर्शकों के लिए खालिद, अब मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, यू कीप आस्किंग एवरी क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन से पहले every question is like why don't you do this show alone then? No, he'll just say वाह मोदी जी वाह, क्या वाह मोदी जी वाह। चलो मोदी जी के लिए ताली। हाँ, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं तो इंडिविजुअल हो सकते हैं जो बात करेंगे प्रिंसिपल एंड मोरालिटी की, राइट? तो अगर वो मोरालिटी की बेसिस पे बोलते हैं कि रशिया अटैक कर रहा है एंड दिस इज रॉन्ग, नो मैटर व्हाट एक्सक्यूज इज देयर, और जो भी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको अपार्ट रख के एक मोरालिटी की बेसिस पे ये गलत चीज है, तो वो उनको फ्रीडम भी होगी। लेकिन उनका ये जो एक थोड़ा उसके आगे जाकर के शेमिंग करना होता है, स्टेट को शेमिंग करना, या फिर उन लोगों को जो इस प्रैक्टिकलिटी को देख रहे हैं कि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ये चीज को आप कैसे देखते हो और इसको हम कैसे काउंटर कर पाएंगे बेसिकली? देखिए ये दो चीजें हैं। अमेरिका ने इंडिया के स्टैंड की सराहना की है। जो अमेरिकन थिंक टैंकर्स और न्यूज़पेपर वाले हैं उन्होंने इंडिया का शेमिंग किया है, ठीक है ना। वी ऑलवेज नीड टू डिफरेंशिएट दैट इवन ऑन द CAA एंड थिंग्स लाइक दैट। The American state 370, did you see any official Indian American condemnation? जो आया बहुत mild था, deliberately so that it won't be a direct condemnation, it will be हमने condemn किया पर उसके बाद कुछ नहीं किया। जो सब जहर घोल रहे हैं, सऊदी ने तो endorse भी कर दिया। जो जहर घोलना था वो ये सब न्यूज़पेपर वालों और थिंक टैंक वालों ने किया, ठीक है ना। अब इसमें देखना है कि आपको न्यूज़पेपर वालों और थिंक टैंक वालों के साथ कैसे डील करना है। सैडली जो PMO में जो अब मोदी का वावा कर लिया, आप ही ने ये प्रश्न पूछा है तो अब मोदी पे थू भी करना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपने मेरे से पूछा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मोदी के जो PR मैनेजर्स हैं वो 8 साल से इतने नालायक निकम्मे यूजलेस लोग हैं, उनको तो झाड़ू पोछा लगाने की औकात नहीं है, वो बैठे हैं PMO में PR करते हुए। मेरे कुत्ते को उनसे बेहतर औकात है एक PR एजेंसी चलाने में। कम से कम मेरा कुत्ता तो जानता है किसके पास किसको भौंकना है और किसको काटना है और किसका मुंह चाटना है। ये जिनको काटना है उनका मुंह चाटते हैं और जिनका मुंह चाटना है उनको जाके भौंकते हैं। ऐसे निकम्मे कायर नपुंसक लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, पर ये है, ये हमारा PR चलाते हैं। एग्जाम्पल, जब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या ये सब आप पे लिखते हैं, आप क्या प्रमोद महाजन जी की तरह जो वाजपेयी के टाइम में थे बुला के उनको सबके सामने उनका पर्दाफाश करते हैं? नहीं। जब आप रिसर्च भी नहीं करते, जब आप अमेरिका जाते हैं आप फरीद जकारिया को इंटरव्यू देते हैं जब आपको फॉक्स न्यूज को देना चाहिए, और फरीद जकारिया क्या करता है जब CAA 370 सब कुछ आता है आपके मुंह पे थूकते रहता है। चाहिए आपको, आवश्यक है, ये आपका कर्मा है। When you take bad decisions, you get spat at on the face. तो ये सब जब हो रहा है, पहले तो इन लोगों की औकात नहीं है इसको समझने के लिए, इस डुअलिटी को समझने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि डिप्लोमैट्स टेंड टू एक्सैसरबेट दिस प्रॉब्लम, क्योंकि डिप्लोमैट्स को ये स्किल नहीं है या उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है ये थिंक टैंकर्स और
के साथ कि वो जाके उनसे बात कर सकें, तो वो बोलते हैं सर ये अमेरिकन गवर्नमेंट की साजिश है, अमेरिकन गवर्नमेंट इनको ना भड़का रहा है पीछे से, और मैं देखिए मैं रानी झांसी हूं, मैं जोन ऑफ आर्क हूं जो आपके लिए लड़ रहा हूं, और इसके बेसिस पे आपको प्रमोशन मिल रहा है. The diplomats are part of the problem. The third is the fact that you don't even want to take action against people who are blatantly lying. What prevents you from going to court and asking the court to force Rana Ayub to release the entire transcripts of those 600 odd tapes? Okay. What is forcing you from suing these people for defamation, saying, produce the video evidence? They won't do it. तो ना ही तो आप PR करोगे, ना ही तो आप ह्यूमन रिलेशंस करोगे, ना ही तो आप कोर्ट केस करोगे, बस बैठ के रोते रहोगे. ठीक है. Nobody can respect victimhood का रिस्पेक्ट होता है, नपुंसकता का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है. अनफॉर्चुनेटली जब हमारे रास्ते पे किन्नर आते हैं, हंसना नहीं चाहिए पर हंसते हैं. ये पीएमओ का जो PR डिपार्टमेंट है, हाउ बेटर इज इट? स्ट्रॉन्ग शब्द यूज किया आपने. अभिजीत, एक और चीज इस पे आई वांट टू अंडरस्टैंड इन द सेंस कि अब जब ये हो रहा है, लेकिन द वॉर इज देयर, एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस इज गोना गो ऑन फॉर? लाइक क्या होने वाला है? व्हाट्स योर प्रेडिक्शन लाइक? Look, the Russian notification, I don't know why people are saying Russia expected a swift victory and all of that. You look at the Russian notification for the NOTAM. NOTAM is a notice of air movement, which basically informs all other countries stay away from airspace, is for mid-May. So the Russians themselves budgeted for 3 months. Okay, they already control about 1/5 or 1/6 of Ukrainian territory. So I would say I would go by the Russian estimate of May for this war to get over. It could drag on before or after, but I would say generally, the person planning the campaign would know best. So if they're saying May, let's stick to May. Amana, you asked the next few questions. You told मैं पूछ रहा हूँ ज़्यादा, तो पूछ ले. नहीं, जब क्वेश्चन दिमाग में आते हैं मैं तभी पूछती हूँ. अभी तो आई जस्ट वांट टू नो कि अभी क्या फ्यूचर है इसका, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे, आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो हमारे ऊपर एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन काफ़ी बातें होती हैं कि महंगाई बढ़ सकती है और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उस वे में भी क्या आउटकम आएगा? देखिए, इंडिया के लिए तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगा मीडियम टर्म में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और रूस एक किस्म से चीन से इतना ज्यादा जुड़ जाएगा कि वो हमारे लिए एकदम नाइटमेयर होगा. ठीक है. क्यों जुड़ेगा चीन? बिकॉज और कोई उनसे बिजनेस नहीं कर रहा है. वेस्ट ने तो कंप्लीटली लॉकआउट कर दिया ना. तो इट गेट्स इवन मोर एंटैंगल्ड बिकॉज चाइना इज इट्स सिंगल बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बाय अ ह्यूज मार्जिन. सो इट मेक्स, जब आप किसी और पे देखिए, अभी आपके अज्यूम आपके 4 जॉब है. दिन में आप डॉक्टर का काम करते हो, आफ्टरनून में आप इंजीनियर का काम करते हो, शाम में आके आप यूट्यूबर का काम करते हो. ठीक है. अब अगर आपके डॉक्टर हॉस्पिटल ने आपको रेजिग्नेशन के लिए मांगा, और आपके लार्सन एंड टूब्रो जहां आप इंजीनियर में काम करते हो, उन्होंने आपके लिए रेजिग्नेशन के लिए मांगा, तो आपको फैमिली को मेंटेन करने के लिए आपको यूट्यूब में ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ताकि आपको रेवेन्यूज जनरेट कर सको फैमिली को मेंटेन करने के लिए. ठीक है ना. तो इसी किस्म से है. जब जर्मनी ने ब्रेक ऑफ किया, फिनलैंड ने ब्रेक ऑफ किया, अमेरिका ने ब्रेक ऑफ किया, कनाडा ने ब्रेक ऑफ किया, अब एक ही सोर्स ऑफ इनकम आपका बचा है, चीन एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज, और उन पे डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा. तो ये होगा. बट फॉर रशिया इटसेल्फ, I fear, because the fewer options they have, the more aggressive and unpredictable they're going to become. Right.
वन मोर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक मतलब कई विशेषज्ञों का दे हैव एन एनालिसिस कि ये जानबूझकर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ताकि वो वेपन्स बिजनेस जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस का, उनके सेल्स जैसे जिस हिसाब से वो जंग से चलते हैं दे कैन सप्लाई टू यूक्रेन. इज देयर मेरिट इन दैट कि उनको अगर ट्रम्प होते जो इस लॉबी के अगेंस्ट हैं? I don't see Trump wasn't against the arms lobby. He was against the war industry. अब arms industry और war lobby के बीच में difference समझिए. Trump arms बेचना चाहते थे. ये लोग war चलाना चाहते हैं क्योंकि war में क्या होता है, arms supply भी करते हैं, उसके बाद आप weapons भी supply करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको बंदूक बेचा या गाड़ी बेचा, ठीक है, जब मैं आपको बंदूक बेचता हूं, मैंने बस आपको बंदूक बेच दिया, उसमें बस आपको बुलेट्स खरीदने पड़ेंगे बस. पर अगर मैं आपको गाड़ी बेचता हूं, आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा, आपको बार बार मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, आपको पोल्यूशन चेकिंग करना पड़ेगा, बार बार उसमें पेट्रोल भरते रहना पड़ेगा. सो दैट इज द डिफरेंस आउट हियर. Biden is a candidate of the war industry, but इसमें to America's credit, it did try to stop it. Last minute में उसने stop करने की कोशिश की. Problem क्या था कि अब तक भड़काया है और फिर जब होता है उसके बाद आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो. Too bad. Right. Amna, anything last? No, I think I'm done with all my questions. A to Z हो गया, अभी कुछ बचा नहीं. ठीक है अभिजीत, thank you for coming and educating us on this topic and helping us break it down in a very simple manner, understanding ki it's a gray thing, right? There are no heroes and there are no villains per se. Correct. So thank you guys, great talking to you. Ciao. Bye.